Hello children, let's begin with today's class in the subject nutrition. And for yesterday, yes, I was trying to upload a video and actually I did, but then I don't know why it did not get uploaded. So I don't know why it did not get uploaded, but then yeah, I did actually recorded a 1 hour lecture and which I'll be doing today itself. Today again I have to do all that, okay? So yeah. First of all, I would like to remind you that what were we dealing with in the last class. So in the last class, I was telling you about the nutritional assessment, okay, that what is nutritional status of a person, and then we were dealing with the methods of the nutritional assessment, okay, that what are the methods by which we can be assessing the nutritional status of a person. So in the methods, I was telling you about, for the very first method which I told you was the clinical examination, okay, that it says for assessing the nutritional status of a person, we can do clinical examination. The next method which I taught was anthropometry. Under anthropometry, I did tell you about the waist circumference, head circumference, mid-arm circumference, chest circumference, height, weight, all these things I told you in the last class, okay? And then after clinical examination and anthropometry, the last covered method was the laboratory and biochemical assessment. Laboratory and biochemical assessment में हमने देखा था कि laboratory test से या biochemical test से we can be assessing the nutritional status of the person. Okay. So yeah, so far we have studied this much, and from today I'll be telling you about the next method, which is the functional indicator. Okay. There was clinical examination, then there was anthropometry, then there was laboratory and biochemical tests, and the next method is the functional indicators. Okay. So first of all, I would like to mention that for the assessment of the nutritional status of people, the biochemical test first of all has proven itself to be the best. Biochemical test हमारे जो है वो बहुत effective है. It is very good if we have to assess the nutritional status of a person. But along with biochemicals, lately the functional indicators also have proved to be effective and efficient enough for checking up the nutritional status of the people. Okay, and in this one, some functional indicators are given which are helpful, like sperm count. Males में sperm count को check कर सकते हैं. Sperm count से पता चल सकता है that what is the nutritional status of the person. Then EEG भी कर सकते हैं, ठीक है. EEG के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं that what is the nutritional status of a person. Many more indicators are there by assessing which we will be able to assess the nutritional status of the person. Okay. Fifth method is assessment of the dietary intake. Assessment of the dietary intake means, see, if we have to assess the nutritional status of a person, अगर हमें किसी का न्यूट्रिशनल स्टेटस असेस करना है और साथ में अगर हम ये देख लें कि उस इंसान का पर्टिकुलरली न्यूट्रिशनल क्या इनटेक कैसा है, अगर मुझे किसी का न्यूट्रिशनल स्टेटस पता करना है तो मैं अगर ये देख लूं कि वो उसका इनटेक कैसा है, तो उससे मुझे न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता लग सकता है. कैसे? द प्रॉपर द न्यूट्रिशन इनटेक विल बी, द बेटर द न्यूट्रिशनल स्टेटस विल बी. ओके, जितना अच्छा उसका डाइटरी इनटेक है उतना अच्छा उस पर्सन का न्यूट्रिशनल स्टेटस होगा. ठीक है. सो दिस ऑल्सो इज सर्विंग एज वन ऑफ द टूल फॉर असेसिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन. और ये असेसमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं? वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमें अगर किसी का न्यूट्रिशन इनटेक चेक करना होता है, सो दिस इज मेनली डन बाय कंडक्टिंग द न्यूट्रिशन सर्वेज. ठीक है. न्यूट्रिशन सर्वेज को कंडक्ट करते हैं. सर्वेज के थ्रू ही हमें इनटेक का पता चल सकता है. सर्वे में मेनली हम 3 चीजों के ऊपर सर्वे करते हैं. 3 चीजें मेनली सर्वे में किया जाता है. फर्स्ट इज वेइंग द रॉ फूड्स. रॉ फूड्स को वे करते हैं, उनको मेजर करते हैं. वेइंग मतलब वेइमेंट. वेइमेंट का मतलब है वे करना, मेजर करना, नापना. ठीक है. सो वे करते हैं हम सबसे पहले रॉ फूड्स को, उसके बाद हम वे करते हैं कुक्ड फूड्स को, उसके बाद हम कुछ ओरल क्वेश्चनएयर से भी न्यूट्रिशन इनटेक का पता कर सकते हैं. जैसे हम एक फैमिली में गए, उस फैमिली में रॉ फूड कितना आता है उसको पहले हमने मेजर किया, उसको पहले वे किया. फिर उस फैमिली में कुक्ड फूड कितना प्रिपेयर होता है उसको हमने वे किया, उसको मेजर किया.
उसके बाद वी कैन ऑल्सो बी आस्किंग सम ओरल क्वेश्चंस, क्वेश्चनएयर मतलब सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो ओरली कुछ क्वेश्चंस पूछ कर भी हम ये पता कर सकते हैं कि क्या उनका यू कैन से क्या उनका इंटेक है, किस तरीके की चीजें वो ज्यादा खाते हैं। जैसे कुछ लोगों की फैमिली में राइस ज्यादा खाया जाता है, कुछ लोगों की फैमिली में वीट को सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं दलिया के फॉर्म में या चपाती के फॉर्म में, ठीक है। सो वो क्या चीज उनके ज्यादा खाई जाती है, किस तरीके से उनका क्या डाइटरी हैबिट है, क्या डाइटरी पैटर्न है, ऑल दैट कैन बी असेस्ड। ओके, सो दिस वाज अबाउट द असेसमेंट ऑफ डाइटरी इनटेक। नेक्स्ट मेथड इज वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिटेल में आप कम्युनिटी में पढ़ोगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि क्या होता है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। सी, आपने देखा होगा कभी कभी घर में कुछ लोग आते हैं विद बिग बिग रजिस्टर्स एंड हैवी रजिस्टर्स एंड दे कम एंड आस्क यू अबाउट योर फैमिली। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, कितने आपके टोटल कितने, किसी के घर में टोटल कितने बच्चे हैं, किसी के घर में किसी की डेथ हुई है तो उसके बारे में पूछते हैं। या फिर यू कैन टेक वन मोर एग्जांपल के बर्थ सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स बनाए जाते हैं जब बर्थ होता है या डेथ होता है। क्यों वो चीज बनाई जा रही है? बिकॉज ऑल दिस डेटा गोज स्ट्रेट टू द गवर्नमेंट के पास वो डेटा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में लोग जब आते हैं, एडमिट होते हैं, तो हॉस्पिटल्स में भी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करा जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ऑल दैट डेटा गोज टू द गवर्नमेंट उस डेटा के साथ क्या करती है, पता करती है कि कितने लोग हैं एक पर्टिकुलर कंट्री में, कितने लोग हैं जिनकी डेथ हो रही है, कितने नए बर्थ हो रहे हैं, कितने लोगों को बीमारियां हो रही हैं, ठीक है। ये सारी चीजों का एक रिकॉर्ड जो होता है, कैलकुलेशन ऑफ द बर्थ रेट, ऑफ द डेथ रेट, ऑफ द डिजीज रेट, ये टोटल मिला करके बनाता है वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो वाइटल स्टैटिस्टिक्स हमारा बहुत हेल्पफुल हो सकता है फॉर असेसिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस। व्हाई? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द वाइटल स्टैटिस्टिक्स वी कैन कैलकुलेट और वी कैन चेक द मॉर्टैलिटी एंड मॉर्बिडिटी। मॉर्टैलिटी और मॉर्बिडिटी का क्या मतलब है? मॉर्टैलिटी मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। मॉर्टैलिटी इज द डेथ रेट, मॉर्बिडिटी इज द डिजीज रेट। तो हम डिजीज रेट को, डेथ रेट को पता कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मेनली इन द एज ग्रुप 0 to 5। इन्फेंसी से या न्यूबॉर्न से लेकर के 5 years ऑफ एज तक के जो बच्चे हैं उनमें हम मॉर्टैलिटी, मॉर्बिडिटी को पता कर सकते हैं। और इट इज कंसिडर्ड कि जो 0 से 5 years तक के बच्चे होते हैं, मेनली उनमें जो मॉर्टैलिटी और मॉर्बिडिटी होती है, डिजीज या डेथ होती है, वो मेनली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स की वजह से होती है, मैल न्यूट्रिशन की वजह से होती है। इट इज कंसिडर्ड, इट मेनली हैपन्स एक्चुअली कि 0 से 5 साल तक के बच्चे अगर जो सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं या जो उनमें डेथ होती है, वो मेनली मैल न्यूट्रिशन या फिर ड्यू टू सम न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, उनकी वजह से ही होती है। ओके, सो इन सब चीजों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इट इज सीन कि जो डेवलपिंग कंट्री है, इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, if is compared to a developed country like अमेरिका या डेनमार्क या कनाडा या एनी अदर डेवलप्ड कंट्री, अगर एक डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड कंट्री से हम कंपेयर करें, सो इन अ डेवलपिंग कंट्री द मोर्टेलिटी एंड द मॉर्बिडिटी इज 20 times मोर देन इन अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री में जो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी है वो 20 गुना ज्यादा है डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी we can come across these facts, and then these particular things can be taken action for these things. Okay, so कुछ और भी हमारे तरीके हैं, जैसे कि हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, वो फॉर्मूला होता है, वो पूरा आप अभी कम्युनिटी में जाकर के पढ़ोगे। IMR को कैसे कैलकुलेट करते हैं, MMR को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब आप पढ़ोगे जाकर, ठीक है। IMR इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, MMR इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। ये सब आप अभी आगे जाकर के पढ़ोगे, अभी यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी कैलकुलेटेड। एंड ऑल्सो बच्चों में, जैसे मैंने बताया, 0 to 5 years तक में जो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी होती है वो ज्यादातर मैल न्यूट्रिशन की वजह से होती है या फिर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। साथ साथ में और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इट कैन बी द लो बर्थ वेट, इट कैन बी द स्टिल बर्थ, बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से हो सकता है, बट मेनली इट इज द न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। ओके, सो इन सारी चीजों के बारे में वी कैन calculate and we can sum up these things to have a proper data about the nutritional status of the children mainly. Okay, so ये आपका था vital statistics.
सेवेंथ मेथड ऑफ द न्यूट्रिशनल असेसमेंट इज द अदर मेथड्स। अदर मेथड्स में हमारा क्या आ जाता है? अदर मेथड्स जैसे कि बहुत सारे दूसरे मेथड्स जिसमें कि हम कुछ सर्वे को कंडक्ट करके या फिर कुछ डेटा को रिकॉर्ड करके, मंथली रिकॉर्ड्स को बना करके हॉस्पिटल्स में, ऑल दीज थिंग्स आर देयर बाय विच वी कैन असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ चाइल्ड मेनली, या फिर लोगों में। ओके, जैसे कि फूड बैलेंस शीट को मेंटेन करके, हम ये रिकॉर्ड बना सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देख करके बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम असेस कर सकते हैं। ओके, इन द अदर फैक्टर्स, अदर मेथड्स। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस। नेक्स्ट वी विल बी डीलिंग विद द रोड टू हेल्थ कार्ड। रोड टू हेल्थ कार्ड इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ चार्ट। ठीक है, ये रोड टू हेल्थ कार्ड हमारा जो होता है, व्हाट इट इज, रोड टू हेल्थ कार्ड हमारा एक डिस्प्ले होता है जिसमें एक यू कैन से एक कार्ड होता है जिसमें प्रॉपरली डिस्प्लेड होता है, जिसमें डिस्प्लेड होता है द फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, बच्चों का फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो उस रोड टू हेल्थ कार्ड में प्रॉपरली डिस्प्लेड होता है। ठीक है, उसके वजह से हम देख सकते हैं कि बच्चे में ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये जो हमारा ग्रोथ चार्ट है या फिर रोड टू हेल्थ कार्ड है, ये ग्रोथ चार्ट बनाया था डेविड मॉर्ले ने। एंड डेविड मॉर्ले ने जब ये कार्ड बनाया, देन आफ्टर डेविड मॉर्ले मेड दिस कार्ड, WHO ने देखा कि दिस कार्ड वाज एक्चुअली इफिशिएंट। सो उन्होंने इस कार्ड में कुछ मॉडिफिकेशंस किए, WHO ने। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें फिर कुछ मॉडिफिकेशंस किए। फर्स्टली इट वाज मेड बाय द पर्सन डेविड मॉर्ले एंड लेटर ऑन इट गॉट सम मॉडिफिकेशंस डन बाय द WHO। ओके, सो ये चार्ट मेनली इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि ओवर टाइम, मतलब ओवर टाइम का क्या मतलब है कि कुछ टाइम पीरियड तक ओवर टाइम हम बच्चे का ग्रोथ जो है, फिजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट जो है, उसको मॉनिटर कर सकें, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। सो फॉर दिस पर्पज इट वाज मेनली देयर। ओके, सो एंड ऑल्सो वी कैन, इट वॉज देयर सो दैट इट इज देयर, एक्चुअली वॉज नहीं, अभी भी है। ठीक है, सो इट इज देयर सो दैट वी कैन चेक द चेंजेस विच शुड बी देयर। The changes which should be there means if a child who is 2 years old and then the child gets 3 years old, so there will be some changes, no, which will be there. 2 से 3 साल तक के बीच में कुछ changes होंगे ना बच्चे में. So those changes for checking of those changes, or for checking that whether the changes are happening or not, whether the child is growing, whether the child is increasing in height or not, whether the child is developing properly or not. So for assessing this, and then also to check for the things like if anything is deviated from the normal, अगर कोई ऐसी चीज जो नॉर्मल नहीं है, so उसको भी हम चेक कर सकें, इसके लिए इस चार्ट को बनाया गया था. ओके, और कैसे हम ये चेक कर सकते हैं कि नॉर्मल है या नहीं है, क्योंकि चार्ट हमारा जो है उसमें हमारे रेफरेंस कर्व्स होते हैं. रेफरेंस कर्व्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ. सी, अगर आपने कभी आप हॉस्पिटल गए हो, आपका कभी चेकअप हुआ है, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, कभी क्या, इनफैक्ट आपका जब एडमिशन हुआ है तभी आपके चेकअप्स हुए हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में ही हुए हैं. सो अगर आप उस रिपोर्ट को आपने ध्यान से देखा होगा, या फिर कभी अपने पेरेंट्स की कोई रिपोर्ट उठा के देखा होगा, या किसी पेशेंट की हॉस्पिटल में कोई रिपोर्ट आपने उठाकर देखा होगा, तो यू कैन सी दैट इन द रिपोर्ट्स, जैसे अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, सो हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल रेंज है वो होना चाहिए 12 to 13 इन अ फीमेल, या 11 to 13 होना चाहिए इन अ फीमेल. तो वो 11 to 13 क्या है, वो स्टैंडर्ड है, वो एक रेफरेंस है. फिर आपकी मान लो अगर रेंज आई, फिर आपकी जो रेंज आई रिपोर्ट में, आपकी जो रीडिंग आई, उसको आप कंपेयर करते हो रेफरेंस रेंज से. लाइक अगर HB का जो विमेन में रेंज होना चाहिए दैट इज 11 to 13, तो आप उससे फिर अपनी आपकी मान लो रेंज आई 10, तो आप देखोगे ना 11 to 15 नॉर्मल रेंज है, वो रेफरेंस रेंज है. मेरी आई है 10, मतलब मेरी नॉर्मल है, ठीक है. वो होता है रेफरेंस रेंज, या रेफरेंस जो ये 11 to 12, 11 to 13 था, वो उसको हम बोलते हैं रेफरेंस रेंज, ठीक है. तो वैसे ही ग्राफ में भी कुछ रेफरेंस कर्व्स दिए हुए होते हैं. इन कर्व्स से हम कंपेयर करते हैं जिस बच्चे का डेटा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज रेफरेंस कर्व. तो रेफरेंस कर्व्स की वजह से हमें ये पता चलता है कि अगर नॉर्मल से कुछ डेविएशन है, कुछ चेंजेस हैं, सो वो हम पता कर सकते हैं. ओके, सो ग्रोथ चार्ट को मेंटेन करना बहुत ही सिंपल है.
इनएक्सपेंसिव है, कुछ खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। बच्चे का जो वेट है वो बढ़ रहा है या नहीं ओवर टाइम, उसको पता कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ग्रोथ चार्ट हमारा WHO ने जो दिया वो तो है ही, साथ साथ में बहुत सी कंट्रीज में बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो चार्ट्स हैं, ग्रोथ चार्ट्स हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 2 रेफरेंस कर्व्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 5 रेफरेंस कर्व्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें और ज़्यादा रेफरेंस कर्व्स होते हैं। सो ये मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगी, ठीक है। सो दिस वॉज एन इंट्रोडक्शन अबाउट द रोड टू हेल्थ कार्ड, ठीक है। अभी आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द WHO ग्रोथ चार्ट। WHO ने जो ग्रोथ चार्ट दिया है वो कैसा है। WHO के जो दिया हुआ ग्रोथ चार्ट है उसमें देयर आर 2 रेफरेंस कर्व्स, 2 रेफरेंस कर्व्स हैं, ठीक है। और पहला हमारा जो रेफरेंस कर्व है वो बॉयज के लिए है, दूसरा रेफरेंस कर्व गर्ल्स के लिए है। क्योंकि जैसे मैंने अभी HB का एग्जांपल दिया, तो HB की जो रेंज है विमेन के लिए 11 to 13 है, मेल्स के लिए इट इज 15 to 17, ठीक है। सो दैट कैन not 13 to 15 एक्चुअली। सो दिस कैन बी बॉयज और गर्ल्स के लिए रेंजेस अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो इसी के लिए जो पहली रेंज दी हुई है, पहला जो रेफरेंस कर्व दिया हुआ है दैट इज गिवन फॉर द बॉयज, सेकेंड इज गिवन फॉर अ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। सो इसकी वजह से क्योंकि इसमें दोनों कर्व्स दिए हुए होते हैं सेम ग्राफ में या सेम चार्ट में, तो हम सेम चार्ट को यूज कर सकते हैं दोनों जेंडर्स के लिए, लड़का चाहे वो बच्चा लड़का हो चाहे वो बच्चा लड़की हो, ठीक है। दोनों के लिए हम वही सेम ग्रोथ चार्ट यूज कर सकते हैं, बस ऊपर हमें जेंडर मेंशन करना होगा, ठीक है। सो पहले मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बता रही हूँ, ओके। सो दिस इज द ग्रोथ चार्ट, दिस इज द ग्रोथ चार्ट, ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ये है वो ग्रोथ चार्ट, आई होप एवरीबडी कैन सी इट। ये 2 रेफरेंस कर्व्स हैं, ये जो सिंपल लाइंस गई हैं, प्लेन लाइंस यहाँ तक, दूसरी वाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये है हमारी 2 रेफरेंस कर्व्स। जो बीच में डॉटेड मार्क है, दीज डॉट्स एंड देन दीज डॉट्स आर मैच्ड, ठीक है। सो ये जो डॉटेड चार्टिंग है, ये जिस बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन किया है, ये उस बच्चे का रिकॉर्ड है, ठीक है। सो ये हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज that the growth chart which is given by WHO will be in a form of graph will be there. It will have 2 reference curves and it will also have, जैसे आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हो, name of the mother, then mother's name of the child, date of birth, weight at birth, all these things are there. So ये सारी चीजें मेंशन करने के लिए भी उसमें जगह होगी, साथ साथ में immunization and all these things can also be recorded, ठीक है। सो अभी इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। सो ये हमारे जो 2 रेफरेंस कर्व्स हैं, जो 2 ये एक और दूसरी जो ये जो ऐसा जो रेफरेंस कर्व्स दी हुई हैं, अगर आप उनको देखोगे तो वो आपको दिखाई दे सकती हैं एक रोड के तरीके से, कि ये इतनी हमारी रोड गई हुई है, पहली और दूसरी के बीच का जो स्पेस है वो एक रोड जैसा दिखाई देता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे की रीडिंग इस पहली और दूसरे कर्व के बीच में आती है तो मानते हैं कि वो रीडिंग बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, तो बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है। और इसको रोड टू हेल्थ क्यों कहा गया है वो मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि पहली और दूसरे कर्व का बीच का जो गैप है वो ऐसे जा रहा है जैसे लग रहा है कि एक रोड जा रही है, ठीक है। तो अगर बच्चे का ग्रोथ जो है वो अगर इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसी रेशियो में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है द चाइल्ड इज ऑन द रोड फॉर द डेवलपमेंट, ओके। रोड टू जो हमारा हेल्थ है वो उसका वही मतलब है। सो दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर एंड जो स्पेस है पहले और दूसरे कर्व के बीच में उसको बोलते हैं रोड टू हेल्थ, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। और उन दोनों कर्व्स को बोला जाता है रोड टू हेल्थ कर्व्स, रोड टू हेल्थ कर्व्स, ओके। सो साथ साथ में इस चार्ट में और भी स्पेस होती है लिखने के लिए अबाउट द चाइल्ड्स इम्यूनाइजेशन, बच्चे का आप उसमें डेट ऑफ बर्थ, वेट लिख सकते हो, इम्यूनाइजेशन लिख सकते हो, बच्चा कितनी बार बीमार पड़ा है, अगर बीमार पड़ा है तो वो भी आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी रिकॉर्डेड एज वेल, ओके। सो इसके अलावा साथ साथ में ये जो ग्रोथ चार्ट होता है, इसके अलावा एक और चार्ट होता है विच इज होम चार्ट। होम चार्ट हमारा जो है, क्योंकि इसमें देखिए आपने देखा है कि हम डिपिक्ट करते हैं ग्राफ में, डॉट्स को बनाते हैं, फिर डॉट्स को मैच करते हैं, डॉट्स बनाते हैं, डॉट्स को मैच करते हैं, इस तरीके से हम डिपिक्ट करते हैं। तो कई बार ऐसे पेरेंट्स जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज, वो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो उनको इसलिए दिया जाता है एक होम चार्ट।
होम चार्ट में भी यही डेटा रिकॉर्डेड होता है, बट द डेटा विल बी रिकॉर्डेड इन सच अ मैनर दैट द पेरेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके, ये होम चार्ट जो है उसका एक कॉपी पेरेंट्स के पास होता है, एक कॉपी हॉस्पिटल में होता है, हॉस्पिटल में साथ साथ में ये रोड टू हेल्थ कार्ड भी होता है। एंड द पेरेंट्स आर गिवन दैट होम चार्ट इन विच दे कैन assess the growth of their child, and also this home chart is kept in a plastic envelope। एक plastic envelope के अंदर उसको हम डाल देते हैं। That envelope is handed over to the parents and parents are asked to bring this envelope with the home chart whenever they come for the visit। जब भी वो विजिट के लिए आएंगे हॉस्पिटल तभी भी वो उसको लेकर के आएंगे होम चार्ट को। ओके, so this was about the WHO's growth chart। okay, next growth chart is the growth chart used in India। इंडिया में हम कौन सा growth chart use कर रहे हैं, that I'll be telling you next। okay, so first of all there are 49 different types of growth charts which we are using in India। इंडिया में टोटल 49 टाइप्स ऑफ ग्रोथ चार्ट्स हैं जो यूज किए जा रहे हैं। हर चार्ट में थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन है, दैट्स इट, कुछ अलग नहीं है। मॉनिटर उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट ही करेंगे, किसी में कुछ ऐड कर दिया है, किसी में कुछ सब्सट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, सो दिस इज लाइक दैट। जो ग्रोथ चार्ट इंडियन गवर्नमेंट ने रेकमेंड किया है वो कैसा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सॉरी। सो ग्रोथ चार्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेकमेंड किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट द ग्रोथ चार्ट रेकमेंडेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट हैज गॉट 4 रेफरेंस कर्व्स। 4 रेफरेंस कर्व्स हैं उसमें जो इंडियन गवर्नमेंट ने रेकमेंड किया है। ठीक है, उसमें 4 हमारे रेफरेंस कर्व्स हैं और जिसमें कि पहला हमारा जो रेफरेंस कर्व है वो रिप्रेजेंट करता है, आई विल बी शोइंग, वेट एक बार दिखा देती हूँ फिर बताती हूँ। ओके, सो this is the growth chart which is recommended by the Indian government। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 हमारे रेफरेंस कर्व्स हैं। ठीक है, साथ साथ में स्पेसेस दिए हुए हैं जहाँ पे हम अगर कुछ डेटा रिकॉर्ड करना चाहें सो दैट कैन बी रिकॉर्डेड एज वेल। ओके, सो या देयर आर दीज 4 रेफरेंस कर्व्स आर देयर, जिसमें कि हमारा जो पहला रेफरेंस कर्व है वो दिखाता है 80% ऑफ द मीडियन ऑफ द WHO स्टैंडर्ड। ठीक है, जो हमारा पहला रेफरेंस कर्व है वो दिखाता है 80% ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द WHO's रेफरेंस कर्व। WHO ने जो रेफरेंस कर्व दिया, जो WHO ने आप ऊपर पढ़ा है, रेफरेंस जो दिया है, WHO के रेफरेंस का 80% है इंडियन ग्रोथ चार्ट का पहला कर्व WHO का 80% रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दूसरा जो कर्व है दैट रिप्रेजेंट 70%, थर्ड रेफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स 60%, फोर्थ रेफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स 50%। ओके, सो 80, 70, 60, 50 इस तरीके से WHO का इतना परसेंट जो इंडियन चार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो पर्पस क्या है इन लाइंस का, ये जो रेफरेंस कर्व्स इंडिया वाले में है उनका पर्पस क्या है, उनका पर्पस WHO से थोड़ा सा अलग है। इंडियन कर्व का या इंडियन चार्ट का पर्पस ये है कि ये दिखाता है डिग्री ऑफ मैल न्यूट्रिशन को। दीज लाइन्स, द रेफरेंस कर्व्स इन द इंडियन चार्ट, इट रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ मैल न्यूट्रिशन। ये डिग्री ऑफ मैल न्यूट्रिशन को दिखाता है। मैल न्यूट्रिशन हमको पता है कि जो है वो 4 डिग्रीज में होता है या 4 ग्रेड्स में होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड देन सो ऑन। ठीक है, कितना सीवियरिटी जो है मैल न्यूट्रिशन की वो ग्रेड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करी जाती है। सो पहला हमारा जो बच्चे का जो अगर वेट है वो पहले और दूसरे रेफरेंस कर्व के बीच में आए, 80 और 70 वाले रेफरेंस कर्व के बीच में आए, या 80-70% वाली जो लाइन है उसके बीच में आए, तो ये मानते हैं कि दैट देयर इज फर्स्ट डिग्री ऑफ मैल न्यूट्रिशन, दैट द चाइल्ड हैज फर्स्ट डिग्री ऑफ मैल न्यूट्रिशन। इफ द रेंज और इफ द वेट ऑफ द चाइल्ड कम्स इन बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड, मतलब 70 और 60 तो ग्रेड 2, अगर हमारा 60 और 50 तो ग्रेड 3, अगर 50 के भी नीचे है दैट इज ग्रेड 4 या फिर बहुत सीवियर मैल न्यूट्रिशन है। ठीक है, सो इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर पहले दो कर्व्स के बीच में आया तो फर्स्ट डिग्री, दूसरे 2 कर्व्स के बीच में आया सेकेंड डिग्री, तीसरे 2 कर्व्स के बीच में आया तो थर्ड डिग्री, चौथे 2 कर्व्स के बीच में आया तो 4th डिग्री एंड देन सो ऑन। ठीक है,
सो इस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। और अगर एक बात और यू शुड बी नोइंग दैट अगर बच्चे का जो वेट रिकॉर्ड है वो फर्स्ट 2 लाइन्स के बीच में आता है 80 और 70 के बीच में, तो देयर इज नो नीड टू बी पैनिक. You just need to tell the parents that some modification is required. It is satisfactory. It is satisfactory. There is no need to worry, but then there is also the need to be more conscious about the child's nutrition. थोड़ा सा conscious होने की जरूरत है, बट उतना कुछ पैनिक होने वाली बात नहीं है, क्योंकि फर्स्ट 2 लाइन्स के बीच में जो रीडिंग आई है दैट इज सेटिस्फैक्ट्री. ओके, दैट इज सेटिस्फैक्ट्री. उसके लिए ना आपको पैनिक होना है ना पेरेंट्स को पैनिक करना है. फिर ग्रेड 2 है तो ऑब्वियसली फिर और ज्यादा मॉडिफिकेशन, ग्रेड 3 है तो बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन, ग्रेड 4 है तो और भी ज्यादा मॉडिफिकेशन. सीवियर मैल न्यूट्रिशन जा रहा है ना, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट वाला अगर हमारा है तो इट मीन्स द चाइल्ड इज नरिश्ड, बट देन थोड़ा सा कुछ हमें ध्यान देने की जरूरत है. अगर ब्रेस्ट फीडिंग टाइमली नहीं हो रही थी तो ब्रेस्ट फीडिंग को थोड़ा सा टाइमली करना है, ये हल्का फुल्का सा ध्यान देना है. दैट्स इट. ओके, so this was about the growth chart in India. Now the next thing which I'll be telling you is the uses of the growth chart. Growth chart का क्या use है, क्यों हम use कर रहे हैं growth chart? So the first use of the growth chart is for the growth monitoring, of course. Okay, that's very obvious. Growth को monitor करने के लिए हमें चाहिए growth chart. Second is कि ये growth chart help करता है, ये act करता है as a diagnostic tool. जो हाई रिस्क चिल्ड्रन हैं, हाई रिस्क मतलब क्या हो, कौन से बच्चे हाई रिस्क होते हैं? जो मैल नरिश्ड चिल्ड्रन है, जो लो बर्थ वेट बेबीज हैं. लो बर्थ वेट मतलब जो जब पैदा हुए तो उनका वेट 1 kg से कम था, 1 kg से कम था. सो दोज आर द हाई रिस्क चिल्ड्रन. ठीक है, सो ऐसा कोई जो अगर बच्चा है तो वो हाई रिस्क है, तो उनके लिए हमें ग्रोथ चार्ट को अगर हम मॉनिटर करेंगे तो वो हमें एक डायग्नोस्टिक टूल की तरीके से काम करेगा. ठीक है, डायग्नोस्टिक टूल का क्या मतलब है? जैसे अगर किसी को अनीमिया है तो क्या करते हैं, उसका हीमोग्लोबिन चेक करवाते हैं. तो हीमोग्लोबिन हम क्यों चेक करवा रहे हैं? क्योंकि वो एक डायग्नोस्टिक टूल है, उससे हमें पता चलेगा कि किसी के इस पर्सन का हीमोग्लोबिन कितना है, तब उसी के अकॉर्डिंग हम उसे ट्रीटमेंट देंगे. ये होता है डायग्नोस्टिक टूल. ठीक है, सो दैट रिपोर्ट इज अ डायग्नोस्टिक टूल. सो यहाँ पे भी ग्रोथ कार्ड हमारा जो है वो एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह काम कर रहा है. देन नेक्स्ट, ग्रोथ चार्ट हमें हेल्प करता है कि हम प्लानिंग कर सकें और पॉलिसीज को बना सकें बच्चों के लिए. जो बच्चों के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनके लिए हम उनके ग्रोथ के अकॉर्डिंग पॉलिसीज को बना सकें, प्लानिंग को कर सकें. अगर हमें कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, बच्चे का न्यूट्रिशन सही नहीं है, तो उन मेजर्स को हमें लेने के लिए इट वर्क्स एज अ बेसिस. ठीक है, हमें ये एक बेसिस के तरीके से काम करता है. उसी के बेसिस पे फिर हम प्लानिंग करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं. जैसा बच्चे का न्यूट्रिशन होगा, जैसे उसका ग्रोथ होगा, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाई जाएंगी. सो इट इज ऑल्सो हेल्पिंग दैट वे. ओके, नेक्स्ट इज इट इज वर्किंग एज एन एजुकेशनल टूल. एजुकेशनल टूल का क्या मतलब है? अगर हम पेरेंट्स से ऐसे बच्चा हमने देखा और हमने पेरेंट्स से बोला बच्चे का ध्यान दिया करिए, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करवाया करिए एंड ऑल दीज थिंग्स, पेरेंट्स विल नॉट पे अटेंशन, बिकॉज उन्हें पता है कि मतलब बच्चा, उनका कोई बीमारी थोड़ी ना है, बच्चे को बच्चा सही है. बट अगर आपके पास एक ग्रोथ चार्ट होगा तो आप उन्हें ये दिखा सकते हो कि देखिए इस महीने में बच्चे का कम से कम इतना ग्रोथ होना चाहिए था, इस साल में बच्चे का इतना ग्रोथ होना चाहिए था पर नहीं हुआ, इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम. ठीक है, तो आप उनको उसके अकॉर्डिंग अगर एजुकेट करोगे तो वो ज्यादा अच्छे से उस बात को सुनेंगे, ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि उन्हें प्रूफ मिल रहा है उस चीज का. ठीक है, सो इट इज वर्किंग ऑल्सो एज एन एजुकेशनल टूल. देन नेक्स्ट इज इट ऑल्सो वर्क्स एज अ टूल फॉर हेल्थ वर्कर्स. हेल्थ वर्कर्स के लिए भी एक टूल की तरीके से काम करता है. देन आप ग्रोथ चार्ट को यूज करके इवेल्युएट कर सकते हो. इवेल्युएट किस चीज को कर सकते हो? जो भी करेक्टिव मेजर्स हमने लिए, जो भी हमने बच्चों के लिए सर्विसेज स्टार्ट करी, जो मैल नरिश्ड थे उनके लिए जो सर्विसेज हमने स्टार्ट करी, वो सर्विसेज कितनी इफेक्टिव है, कितनी सही रही है, उसको भी चेक करने के लिए ग्रोथ चार्ट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर सर्विसेज हमारी सही थी, अगर जैसे कि आप बीमार थे, आपने दवा ली, एंटीबायोटिक आपने कोई लिया, आपने एंटीबायोटिक का 5 दिन का कोर्स किया, 5 दिन के कोर्स के बाद आपकी तबीयत बेटर होनी चाहिए थी ना. पर अगर बेटर नहीं हो रही है, इसका क्या मतलब है? कि मेडिसिन आपके ऊपर असर नहीं कर रही, या तो कुछ गलत मेडिसिन है आपके लिए, आपकी डिजीज के अकॉर्डिंग नहीं है. ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला. सिमिलरली जब किसी बच्चे में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा या डेवलपमेंट नहीं हो रहा एंड यू आर टेकिंग सम करेक्टिव मेजर्स, आप कुछ उसको करेक्टिव मेजर्स ले रहे हो, फिर महीने 2 महीने के बाद या कुछ टाइम के बाद उसमें कुछ रिजल्ट आना चाहिए ना.
तो ग्रोथ चार्ट में उसका रिजल्ट दिखाई देना चाहिए। अगर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब द सर्विसेज आर नॉट अप्रोप्रिएट, दे आर नॉट एक्यूरेट, दे आर नॉट एडिक्वेट इनफ। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग कि ये इवैल्यूएटिव टूल के तरीके से भी हेल्प करता है, इवैल्यूएट कर सकते हैं हम। ठीक है, सेवेंथ यूज ऑफ द ग्रोथ चार्ट इज दैट इट इज वर्किंग एज अ पासपोर्ट, इट इज वर्किंग एज अ पासपोर्ट टू द चाइल्ड हेल्थ केयर। पासपोर्ट टू द चाइल्ड हेल्थ केयर मतलब बच्चों को प्रॉपर हेल्थ केयर मिल सके, इसके लिए वो एक पासपोर्ट की तरीके से काम करता है। पासपोर्ट का क्या काम होता है, क्यों हम पासपोर्ट लेते हैं, पासपोर्ट का क्या यूज है। पासपोर्ट आपको हेल्प करता है, वो वैलिडेट करता है कि आप दूसरे कंट्रीज में विजिट कर सकते हो। दैट इज अ लाइसेंस, दैट इज अ फॉर्म ऑफ लाइसेंस। ओके, सो वैसे ही ये हमारा जो ग्रोथ चार्ट है, ये भी एक लाइसेंस है जो ये दिखाता है कि बच्चा जो है वो प्रॉपर ग्रोथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, दैट्स जस्ट गिवन लाइक अ फ्रेज दे हैव गिवन। ओके, सो दिस थिंग इज देयर। ओके, so this was about the growth chart and the road to health card. Next topic in this chapter itself is the nutritional education. Nutritional education क्या चीज होती है? Nutritional education का मतलब है जब हम किसी को गाइड करते हैं, when we guide people to adopt, when we guide people to choose or to adopt optimum and balanced diet for themselves. जब हम लोगों को एडुकेट करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं कि वो अपने लिए ऑप्टिमम और बैलेंस्ड डाइट को चूज करें, दैट इज न्यूट्रिशनल एडुकेशन। ठीक है, और इसमें वो बैलेंस डाइट को तो अडॉप्ट करें, साथ साथ में वो सारे प्रीजुडाइसिस को हटाएं। प्रीजुडाइसिस को हटाने का क्या मतलब है, जैसे कि कहीं कहीं पे प्रीजुडाइसिस होते हैं, लाइक जो विमेन है उन्हें प्रेगनेंसी में ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, देन देयर आर लाइक पपाया नहीं खाना चाहिए, दीज थिंग्स आर देयर। देन देयर आर सम प्रीजुडाइसिस कि विमेन जो है उनको मेल्स के खाना खाने के बाद ही खाना खाना चाहिए। ठीक है, सो ऑल दी सॉर्ट ऑफ प्रीजुडाइसिस आर देयर, जिसमें कि खाने को लेकर के या फिर बच्चों के लिए भी कहीं कहीं पे प्रीजुडाइसिस होते हैं कि जो कोलेस्ट्रम होता है, जो मदर का येलो मिल्क होता है प्रेगनेंसी के बाद, जो डिलीवरी के बाद जो मदर को सिक्रीट होता है येलो मिल्क, तो कहीं कहीं पे प्रीजुडाइसिस है कि वो बच्चे को नहीं देना चाहिए क्योंकि बच्चे के ऊपर उसका गलत इफेक्ट होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी बच्चों को वो जरूर देना चाहिए, कोलेस्ट्रम बच्चों को जरूर देना चाहिए, दैट इज बिकॉज दैट बिल्ड्स इम्यूनिटी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, सो ये सारे प्रीजुडाइसिस को हम हटा सकें, प्रीजुडाइसिस को हटाने के लिए, गुड डाइटरी हैबिट्स को प्रमोट करने के लिए और बैलेंस्ड डाइट के लिए, जब इन सब चीजों के लिए हम लोगों को गाइड करते हैं, दैट इज नोन एज द न्यूट्रिशनल एजुकेशन। ओके, सो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हमारे बहुत सारे हैं, जैसे कि इग्नोरेंस, सबसे बड़ा न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्यों? जैसे विमेन होती हैं, इग्नोरेंट होती हैं अपनी हेल्थ को लेकर के, अपने न्यूट्रिशन को लेकर के, वो फैमिली के बारे में सोचती हैं कि फैमिली प्रॉपर, फैमिली को वो खाना बनाकर टाइम पे दे दें, बच्चे सही से खा लें, ऑफिस चले जाएं, हस्बैंड्स एंड ऑल दैट थिंग्स। सो विमेन एंगेज देमसेल्व्स इन देयर हाउस एंड दे डू नॉट पे अटेंशन दैट मच टू देयर ओन हेल्थ। ठीक है, सो दिस इज इग्नोरेंस, वो अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रही हैं। फैमिली ऑल्सो इज समटाइम्स, फैमिलीज ऑल्सो गेट इग्नोरेंट टूवर्ड्स द हेल्थ ऑफ द वेमेन, या फिर समटाइम्स मेल्स ऑल्सो, आदमी भी जो होते हैं उनके लिए भी हो सकता है कि दे आर इग्नोरेंट टूवर्ड्स देयर हेल्थ, काम में बिजी है, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, दे आर नॉट टेकिंग प्रॉपर गुड केयर ऑफ देयर न्यूट्रिशन, then they are not taking proper rest and sleep as well, no proper activity is there. So all these sorts of things are there which are related to ignorance, that leads to the nutritional problems. So nutritional problems हमारी जैसे कि ignorance हो गया, या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर जो ट्रेडिशनल फूड एलोकेशन है फैमिलीज में, किस तरीके से डाइटरी पैटर्न होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में फैमिलीज को एडुकेट किया जा सकता है कि वो किस तरीके से इग्नोरेंट ना रहें, वो किस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग को हम प्रमोट कर सकते हैं उसके बारे में, या फिर जो फैमिली डाइटरी हैबिट्स हैं उसके बारे में। अबाउट ऑल दीज थिंग्स द न्यूट्रिशनल एजुकेशन कैन बी गिवन टू द फैमिली, ओके, और टू द पीपल। सो एक कुछ बाकी नीचे पैराग्राफ में कुछ चीजें दी हुई हैं, वो ये बोल रही हैं कि सी in the earlier times there was not so much importance given to the nutrition. Why? Because nutrition पहले ये मानते थे कि अगर कोई बीमार है तो उसके लिए ट्रीटमेंट करो। ठीक है, कोई बीमार है तो उसके लिए ट्रीटमेंट करो। थेराप्यूटिक थिंग वाज ऑफ मोर इम्पोर्टेंस एज कम्पेयर टू द प्रोफिलेक्टिक। प्रोफिलेक्टिक को लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे,
थेराप्यूटिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर उतना इंपॉर्टेंस नहीं था, ट्रीटमेंट के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस था, ठीक है। बट लेटर ऑन जैसे जैसे ये पता चला कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं है तो हो सकती हैं, तब फिर न्यूट्रिशन के ऊपर भी ध्यान दिया जाने लगा। पहले न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, न्यूट्रिशनल रिसर्चेस कंडक्ट नहीं कराई जाती थी पहले। बट देन जब ये पता चला कि लोगों को न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, न्यूट्रिशन भी हमारा एक एस्पेक्ट है जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है, तब फिर न्यूट्रिशनल रिसर्चेस को कंडक्ट करवाया जाने लग गया। देन पीपल वर टोल्ड अबाउट द डाइट, जो हमारे डाइटरी अलाउंसेज हैं उनके बारे में पता चला, प्रॉपर कमिटीज बनाई गई न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, प्रोग्राम्स बनाए गए, पॉलिसीज बनाई गई, ठीक है। तब न्यूट्रिशन के ऊपर काम शुरू हुआ, क्योंकि जैसे कि देयर आर सम डिजीजेस विच बेसिकली हैपेंस बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। अगर आप बहुत ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस लाइक CAD, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है, मैं पहले कई बार बता चुकी हूँ आपको। तो अगर आप ऐसा फूड ले रहे हो जो इट्स वेरी हाई इन फैट रिच है, और यू कैन से कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज कर रही है, तो जो कोरोनरी आर्टरीज है वहां पे क्या होगा, वो कोलेस्ट्रॉल जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो दैट विल अगेन, जो आर्टरीज है उसमें से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, हार्ट हमारा जो है दैट विल गेट पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को, बॉडी में सारे ऑर्गन्स को नहीं पहुंच पाएगा ब्लड, सो दैट विल अगेन लीड टू अ डिजीज, दैट इज अगेन अ डिजीज इटसेल्फ, ठीक है। सो हमारी ये हार्ट डिजीज हो सकती है जो डाइटरी हैबिट्स की वजह से, इम्प्रॉपर डाइटरी पैटर्न्स की वजह से हो सकती हैं। साथ साथ में हाइपरटेंशन, हाई बीपी, ये भी हमारा डाइटरी प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है, जेनेटिकली भी हो सकता है, डाइटरी प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है, लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है। डायबिटीज में हमारा जो है वो अनहेल्दी डाइट की वजह से हो सकता है। बहुत सारी हमारी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेस हैं। तो जब ये सब पता चला तब न्यूट्रिशन के ऊपर पीपल पेड मोर अटेंशन, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स, they also paid more attention, government paid more attention on the nutrition as well, okay। so आज हमारा जो है वो न्यूट्रिशन को इक्वली इंपॉर्टेंस मिलती है। आज अगर हम की कोई भी हमें अगर प्रॉब्लम है, एनीमिया है, कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है एनीमिया के प्रॉब्लम के साथ, तो डॉक्टर उसको मेडिसिन तो देते हैं, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन तो देते ही हैं, साथ साथ में डॉक्टर ये भी बोलते हैं आप चने ज्यादा खाइए, आप पालक ज्यादा खाइए, या फिर यू इंक्रीज योर आयरन रिच सप्लीमेंट्स एंड डाइट शुड बी इंक्रीज्ड, ओके। हर एक चीज के लिए, अब पहले एक्सरसाइज के लिए भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं था, क्यों? क्योंकि लोगों की एक्टिविटी ही बहुत ज्यादा थी, पीपल वर एंगेज्ड इन द एक्टिविटीज लाइक फार्मिंग करते थे, किसानी करते थे, खेती करते थे, ठीक है। सो दे वर सो मच इंडल्ज्ड एंड इन्वॉल्व्ड इन द फिजिकल एक्टिविटीज कि उस टाइम पे फिजिकल एक्टिविटीज के लिए भी इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट देन अभी क्या है, पीपल आर लिविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, तो एक्सरसाइज के ऊपर भी ध्यान देते हैं, न्यूट्रिशन के ऊपर भी ध्यान देते हैं, जो पहले नहीं था। बट नाउ दीज थिंग्स आर पेड अटेंशन इक्वली as much as the medicines are being given attention, as much as importance any other therapy is taking or is given, nutrition and exercise and activities are given proper importance, and proper focus is there at these particular things as well, okay। So yeah, now the next is, the next thing which I'll be telling you about is the nutritional education. Basically, what are the factors on which nutritional education mainly focuses? क्या ऐसी चीजें हैं जिनके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, या फिर न्यूट्रिशनल एजुकेशन किन चीजों के ऊपर ज्यादा हमें ध्यान देना है? द वेरी फर्स्ट थिंग इज ब्रेस्ट फीडिंग एंड वीनिंग। ब्रेस्ट फीडिंग एंड वीनिंग, सबको पता है व्हाट इज ब्रेस्ट फीडिंग। मदर बच्चे को जो ब्रेस्ट फीड करवाती है, दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग। वीनिंग क्या है? जो बच्चे को 6 महीने के एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जब मदर फूड इंट्रोड्यूस करती है साथ साथ में ब्रेस्ट फीडिंग के, दैट इज वीनिंग। एवरीबडी नोज इट, आई ऑलरेडी हैव टॉट यू अबाउट वीनिंग, ठीक है। टेस्ट भी आपका हो चुका है वीनिंग के ऊपर। सो यहाँ पे ये चीज, इसमें हमें क्या एजुकेट करना होता है? द मदर शुड बी प्रॉपरली एजुकेटेड ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, कि 6 महीने तक उन्हें बच्चे को एक्सक्लूसिवली शी हैज टू ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड, एंड देन आफ्टर 6 months उनको वीनिंग भी स्टार्ट करनी है। प्रेगनेंसी के टाइम पे ही मदर को ये चीजें बताई जाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सिखाया जाता है। देन शी इज ऑल्सो टॉट अबाउट द वीनिंग, कि 6 महीने के बाद आपको किस तरीके से बच्चे की वीनिंग करनी होती है, क्या क्या रेसिपीज आप यूज कर सकते हो बच्चों को जब आप फूड इंट्रोड्यूस करते हो 6 महीने के बाद, तो वो सारी चीजें भी उनको बताई जाती हैं। और कौन बताता है ये? कम्युनिटी हेल्थ नर्स,
ओके। कम्युनिटी हेल्थ नर्स और द क्लिनिकल नर्स वो मदर को एजुकेट करती है रिगार्डिंग दीज थिंग्स। दिस वॉज अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग एंड वीनिंग। सेकेंड फोकस इज द प्री स्कूल एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। प्री स्कूल एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन क्यों मैं बोल रही हूँ, इस पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि प्री स्कूल चिल्ड्रन हमारे जो होते हैं वो एवरीबॉडी नोज के प्री स्कूल हमारा जो एज ग्रुप है उस टाइम पे सॉरी प्री स्कूल टाइम पे बच्चे का बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा होता है, स्पर्ट ग्रोथ होता है। स्पर्ट ग्रोथ मतलब दे हैव दिस स्पर्ट, दिस इज नोन एज द ग्रोथ स्पर्ट पीरियड। ग्रोथ स्पर्ट पीरियड क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें अचानक से बच्चे का ग्रोथ होता है, बच्चे की हाइट जो है वो अचानक से बढ़ती है। बच्चे बहुत पतले भी हो जाते हैं, तो पतले हो जाते हैं क्योंकि हाइट भी अचानक से बढ़ रही है। वेट उनका जो है उसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। हाइट क्योंकि बढ़ रही है, बॉडी इज बिल्डिंग अप, सो प्रोटीन्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे। सो मदर को हमें एडुकेट करना है कि जिस टाइम पे बच्चा प्री स्कूल या स्कूल एज में है, शी हैज टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्रोटीन इनटेक ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे का प्रॉपर प्रोटीन इनटेक होना चाहिए। देन बच्चे स्कूल गोइंग टाइम में बहुत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, स्कूल जाते हैं, खेलते कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। सो बहुत ज्यादा एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है। अगर उनको उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो दे विल बी मैल नरिश्ड। सो द मदर्स ऑल्सो आर एजुकेटेड अबाउट द सेम। उनको बताया जाता है। बच्चे खाने पीने में भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे स्कूल जाना जो शुरू कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, भागते दौड़ते रहते हैं। तो यू हैव टू प्लान योर मील्स अकॉर्डिंगली बच्चों के लिए। जैसे मदर्स क्या करती हैं, अगर जो बच्चे भाग दौड़ रहे हैं खाना पीना खाने के लिए, नहीं ज्यादा बैठते हैं खाना पीना खाने के लिए, तो मदर्स क्या करती हैं, चपाती लेकर के उसमें सम स्टफिंग शी कैन फिल एंड देन शी रोल द चपाती एंड हैंड इट ओवर टू द चाइल्ड। द चाइल्ड विल कीप ऑन प्लेइंग एंड हैविंग द फूड साइड बाय साइड। सो ऑल दीज थिंग्स मदर्स आर टोल्ड अबाउट दीज थिंग्स कि किसी भी रीजन से बच्चे का न्यूट्रिशन हैम्पर नहीं होना चाहिए। ओके, सो दीज थिंग्स आर टोल्ड टू द मदर एंड देन द मदर हैज टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स as well. And also along with the mother, the school teachers also should be aware of the child's nutrition. स्कूल टीचर्स को क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि अगर पेरेंट्स जो हैं वो अगर नेग्लिजेंट हैं, अगर वो नहीं ध्यान दे रहे हैं बच्चे के न्यूट्रिशन का, तो स्कूल को भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं? जैसे कि स्कूल्स में क्या हो जाता है, कई बार स्कूल्स में एक बना देते हैं, मेन्यू सेट कर देते हैं या टाइम टेबल सेट कर देते हैं। जैसे पढ़ाई का टाइम टेबल होता है, वैसे स्कूल्स में क्या करते हैं, मेन्यू टेबल सेट कर देते हैं। मेन्यू टेबल इन द सेंस कि दे विल बी हैविंग अ मेन्यू के मंडे को बच्चे को ये चीज लेकर के आनी है लंच में, ट्यूसडे को बच्चा ये लेकर के आ सकता है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वो ये लेकर आ सकता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वो ये कोई चीज लेकर के आ सकता है। तो इससे क्या होगा, बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर मेन्यू टेबल, सो बच्चे को अलग अलग दिन अलग अलग चीजें मिल सकती हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सकता है, दैट इज गुड फॉर द चाइल्ड्स हेल्थ। ओके, सो दिस वाज अबाउट इट। नेक्स्ट फोकस इज द प्रेग्नेंट एंड लेक्टेटिंग मदर। प्रेग्नेंट और लेक्टेटिंग मदर्स को हमें किस चीज के लिए टीच करना है? प्रेगनेंसी में मदर को आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम जो सप्लीमेंटेशन देते हैं वो तो देना ही है, साथ साथ में ऑल्सो शी मस्ट बी टोल्ड अबाउट what sort of nutrition she should take. She should add some green leafy vegetables in her diet. She should be increasing pulse intake. She should also be increasing milk intake. Milk intake करना चाहिए उसे, क्या क्या चीजें उसे खानी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए. All these things should be told to the mother while she is pregnant. लैक्टेटिंग मदर्स को बताना है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में. 6 महीने तक उन्हें एक्सक्लूसिवली बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना है. देन शी कैन स्टार्ट वीनिंग. मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पे ही बताना है क्या पोजीशंस यूज कर सकती है वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स विल बी टोल्ड टू द मदर. उनको ये भी बताना है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज लेनी है. नॉर्मल जितना इंसान लेता है कोई अडल्ट, उससे ज्यादा लेनी है. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. प्रोटीन्स, कैल्शियम इनटेक, दीज थिंग्स विल बी प्रमोटेड बाय एजुकेटिंग द मदर. नेक्स्ट इज द बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट में क्या करना है, यहाँ पे हमें बताना है अबाउट द बैलेंस डाइट. किन लोगों को, जो लोग बिलोंग करते हैं लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से, सबको बताना है वैसे तो, बट द पीपल हु बिलोंग टू लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, वो लोग हो सकता है कभी कभी तो जो लोग लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से बिलोंग करते हैं, उनका वो अफोर्ड नहीं कर सकते फूड को, वो हर चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते. तो उनका मानना ये होता है कि दे शुड हैव समथिंग विद विच दे विल बी फीलिंग फुल. उनका ये मानना है कि मैंने कोई चीज खाई और मेरा पेट भरा है तो मतलब
ठीक है मेरा डाइट प्रॉपर है, बट इट डजंट हैपन दैट वे। उनको बैलेंस डाइट के बारे में नहीं पता होता है। बस उन्हें लगता है जब मेरा पेट भर गया, मैंने कोई चीज खा ली, मेरा पेट भर गया, तो मतलब मैं अब मुझे मेरा न्यूट्रिशन प्रॉपर है, बट दिस डजंट गोज लाइक दैट। तो उन्हें हमें बताना है बैलेंस डाइट के बारे में। कम्युनिटी हेल्थ नर्स उन्हें बता सकती है, डाइटिशियन उन्हें बता सकते हैं अबाउट दिस, हॉस्पिटल में जो डाइटिशियंस है वो बता सकते हैं। उन्हें बताना है, प्रॉपर नॉलेज देनी है बैलेंस्ड डाइट के बारे में, कि अगर आप कोई एक चीज बहुत ज्यादा खा रहे हो और दूसरी चीज को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, जैसे अगर आप चावल बहुत ज्यादा खा रहे हो, वीट नहीं ले रहे हो उतना ज्यादा, ठीक है, या फिर दाल उतना ज्यादा नहीं ले रहे हो, तो क्या होगा? चावल ज्यादा खा रहे हो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा ले रहे हो, बट वीट नहीं ले रहे हो। वीट में फाइबर्स होते हैं तो फाइबर्स आपको नहीं मिल रहे। देन अगेन दाल में प्रोटीन होता है तो प्रोटीन आपको नहीं मिल रहा। तो अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो बट बाकी चीजें इग्नोर कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? यू आर लेटिंग सम डेफिशिएंसी ग्रो अप इन योर बॉडी। प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, फाइबर्स की डेफिशिएंसी हो गई, क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स लिया। तो वी हैव टू टेल देम द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम ले रहे हैं तो साथ साथ में प्रोटीन हमें इग्नोर नहीं करना, फाइबर्स इग्नोर नहीं करने, फैट इग्नोर नहीं करना, एवरीथिंग हैज टू बी गेटिंग इन। एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होना चाहिए। ओके, सो दिस वाज अबाउट द मेथड्स ऑफ द फोकस ऑफ द न्यूट्रिशनल एजुकेशन। ये सारे फोकस थे, जिसमें कि पहला हमारा था ब्रेस्ट फीडिंग एंड वीनिंग, सेकेंड वॉज प्री स्कूल एंड स्कूल चिल्ड्रन, थर्ड वॉज द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, फोर्थ वन वॉज द बैलेंस्ड डाइट। द नेक्स्ट इज योर, इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड्स ऑफ इम्पार्टिंग न्यूट्रिशनल एजुकेशन। अभी न्यूट्रिशनल एजुकेशन हमें क्या क्या देनी है ये तो हमने देख लिया। अभी नेक्स्ट बात हम ये करने हैं कि किस तरीके से हम इस एजुकेशन को इम्पार्ट करेंगे, लोगों तक किस तरीके से इस एजुकेशन को पहुंचाएंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग इज पर्सनल टॉक्स। पर्सनल टॉक्स कैन बी डन, पर्सनली बातें करके पर्सनल टॉक्स कैन बी डन। दीज टॉक्स कैन बी 1 to 1, एक नर्स एक पर्सन को दे रही है, दैट कैन बी देयर। दिस कैन बी 1 to many, एक नर्स कई लोगों का ग्रुप ऑर्गेनाइज करके कई लोगों को वो टीचिंग दे रही है, ठीक है। सो पर्सनल टॉक्स या फॉर्मल टॉक्स को कंडक्ट करवा के, पर्सनल टॉक मतलब जब हम 1 to 1 कर रहे हैं पर्सनल टॉक हो गया, जब प्रॉपर हमने एक कैंप लगाया और तब सबको गैदर करके तब हम दे रहे हैं, दैट इज फॉर्मल टॉक, ठीक है। सो पर्सनल टॉक करके या फॉर्मल टॉक करके हम ये एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं दूसरों तक। नेक्स्ट इज ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कई लोगों का ग्रुप एक सिलेक्ट करेंगे। ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले हमारे पास एक्सपर्ट होना चाहिए न्यूट्रिशन का, दैट कैन बी अ नर्स, एन एक्सपर्ट नर्स, और दैट कैन बी एन एक्सपर्ट डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट। तो एक हमारे पास एक एक्सपर्ट होना चाहिए, देन ग्रुप में हमारे कुछ लोग होंगे। और एक और चीज हमें जो ध्यान में रखनी है वो ये है दैट द पीपल इन द ग्रुप शुड बी ऑफ द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, शुड possess द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है? लाइक एक ग्रुप है उसमें 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, आप 10 मान लो, 10 में से 5 ऐसे लोग हैं जो लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के हैं, 5 ऐसे लोग हैं जो हाई सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के हैं, या फिर 6-7 लोग ऐसे हैं जो लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के हैं, 3-4 ऐसे लोग हैं जो हाई सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के हैं। तो जो डिस्कशन उस ग्रुप में होगा, और अगर वो लो सोशियो इकोनॉमिक वाले के लिए हम कुछ बता रहे हैं तो वो हाई के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, या फिर अगर हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप वालों अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी दे रहे हैं, जैसे कि अगर हम मान लो अनीमिया के लिए कुछ बोल रहे हैं, हमने बोला कि आपको अनार खाना चाहिए, उसमें बहुत आयरन होता है एंड द हीमोग्लोबिन विल गेट बैक टू नॉर्मल। तो वो जो अनार का कंजम्पशन हम बता रहे हैं, पोमोग्रेनेट का जो कंजम्पशन बता रहे हैं, दैट अप्लाइज फॉर द हाई सोशियो इकोनॉमिक पीपल। जो अमीर है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके ऊपर वो अप्लाई हो रहा है, बट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते नॉर्मल फूड को भी, वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो उनके लिए वो नॉलेज कैसी हो गई? वेस्ट, दैट इज वेस्ट, ठीक है। सो इसके लिए ग्रुप में जो लोग होंगे वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के होने चाहिए, ठीक है। सो पहला हमारा था पर्सनल टॉक्स, सेकंड हमारा था ग्रुप डिस्कशन, थर्ड है हमारा एग्जीबिशन एंड किचन गार्डन। एग्जीबिशन एंड किचन गार्डन का क्या मतलब है? जैसे आपने देखा होगा एग्जीबिशन में क्या करते हैं, बुक्स का एग्जीबिशन। जैसे अगर हम बुक एग्जीबिशन की बात करें तो बुक्स हमारी एग्जिबिटेड होती हैं, आप जाते हो, देखते हो, उसमें से क्या कौन सी बुक आपको लेनी है आप वो देखते हो, क्या नहीं लेना वो देखते हो, ठीक है। तो सिमिलरली हम एग्जीबिशंस को कंडक्ट कर सकते हैं। इन एग्जीबिशन में लोगों को दिखा सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें फ्रेश फूड्स को वो यूज कर सकते हैं, किस तरीके से वो क्या डाइटरी हैबिट्स को वो अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या अच्छी चीजें उसमें से सीख सकते हैं, ठीक है। ये एग्जीबिशन में होता है।
नेक्स्ट इज योर कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन। कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन में क्या करते हैं, कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन में लोगों को हम दिखाते हैं, बताते हैं द वेरियस मेथड्स ऑफ कुकिंग। उनको बहुत से अलग अलग मेथड्स के बारे में बताते हैं कुकिंग के, जो रूरल पीपल हैं। जैसे हम लोग कुकिंग किस किस तरीके से करते हैं, फ्राई करते हैं, गैस में करते हैं, माइक्रोवेव में करते हैं, डीप फ्राइंग कैन बी देयर, बॉइलिंग कैन बी वन ऑफ द मेथड, स्ट्यूइंग इज देयर, पोचिंग इज देयर। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं कुक करने के, ठीक है। तो रूरल एरियाज में हो सकता है वो एक ही दो मेथड्स को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम बहुत सारे मेथड्स को यूज करते हैं। लाइक मैंने जैसे बताया, स्टीमिंग हो गया, फ्राइंग हो गया, डीप फ्राइंग हो गया, माइक्रोवेव हो गया, देन पोचिंग हो गया, स्ट्यूइंग हो गया, ग्रिलिंग हो गया, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हो गए। मैंने देखिए अभी बैठे बैठे मैंने 5 6 7 7 मेथड्स तो मैंने ऐसे ही बता दिए। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं। विलेजेस में ट्रेडिशनल मेथड्स को सिर्फ यूज किया जाता है। सो अगर उनको हम कुकिंग मेथड्स डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो वो उसमें से कुछ सीख सकते हैं कि किन मेथड्स को उन्हें यूज करना चाहिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो अच्छे मेथड्स को अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक। नाउ द फिफ्थ मेथड इज पोस्टर्स एंड चार्ट्स। पोस्टर्स एंड चार्ट्स, पोस्टर्स और चार्ट्स के थ्रू भी हम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। पोस्टर्स और चार्ट्स जो है वो लोग अगर देखेंगे तो वो समझ पाएंगे कि हम क्या बताना चाहते हैं। बट हमें ध्यान में क्या चीज रखनी है कि अगर हम लोगों को पोस्टर्स दिखा रहे हैं, सो वो पोस्टर्स हमारे किस तरीके के होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए। अट्रैक्टिव क्यों, क्योंकि अगर अट्रैक्टिव नहीं होंगे तो कौन देखेगा उसे। बहुत डल सा कलर है पोस्टर, मान लो एक पोस्टर है जो बहुत क्रीम से कलर का एक पोस्टर है, बेज कलर का एक पोस्टर है, उसमें बहुत सारी लाइनें लिखी हुई हैं, बहुत सारी लाइंस मोटी मोटी पतली पतली बहुत सारी लाइंस लिखी हुई हैं, इट इज वेरी बोरिंग एंड ऑल दैट। हु विल सी दैट पोस्टर, विल यू बी सीइंग इट? नो। हम देखते हैं जो अगर बुक्स हम जब पढ़ते हैं, आपने ये देखा होगा जो बच्चों की पिक्चर बुक्स होती हैं, छोटे बच्चों के लिए जो पिक्चर बुक्स आती हैं, आपने देखा होगा वो कितनी कलरफुल रहती हैं। ब्राइट कलर्स आर यूज्ड, रेड्स, ब्लू, greens and all that, peacock greens and all that, all those brights and popping colors are used. तो ऐसे कलर, पॉपिंग कलर्स होंगे तो क्या होगा, लोगों का अटेंशन वहां पे जाएगा, अट्रैक्ट होंगे वो उसके तरफ, ठीक है। वो कलरफुल रहेगा, वो प्लीजेंट होता है। सो पोस्टर्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो पोस्टर्स के लिए हमें ये ध्यान में रखना है, पोस्टर्स शुड बी कलरफुल, इट शुड बी अट्रैक्टिव, मच राइटिंग शुड नॉट बी देयर, बहुत ज्यादा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, पिक्टोरियल होना चाहिए, पिक्चर्स ज्यादा हो ताकि लोगों को पिक्चर्स, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए अगर आप पोस्टर में बहुत सारा लिख दो, फ्लो चार्ट बना दो, लिख दो, पाई डायग्राम बना दो, ये वो सब कर दो, उनके लिए वो किस तरीके का है, दैट इज यूजलेस, वेस्ट है उनके लिए, ठीक है। सॉरी। सो पिक्चर्स ज्यादा होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, साथ साथ में बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। बाकी अभी आप एवीएट्स, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन में पढ़ोगे एवीएट्स, तो वहां पे पढ़ोगे प्रिंसिपल्स ऑफ एवीएट्स, वहां पे ये सारी बातें जो बता रही हूं मैं अभी वहां पे सब पढ़ोगे, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन सब्जेक्ट में। सो इस तरीके का चार्ट होना चाहिए कि वो अट्रैक्टिव हो ओवरऑल, ठीक है, ताकि लोग और साथ साथ में द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो पोस्टर है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का क्या मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कभी आप रोड्स पे, हाईवेज पे जा रहे हो तो आपने देखा होगा साइड साइड में बहुत बड़े बड़े बैनर्स, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं। तो वो होर्डिंग्स कैसे होते हैं, you will look at the hoarding and you will understand that okay, this hoarding is promoting some beauty product, this hoarding is promoting some clothing brand, this hoarding is promoting some cooking oil। आपको होर्डिंग को देख के समझ में आ जाता है, अगर आप ना भी पढ़ो तो आपको देख के समझ में आ जाता है कि वो किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। तो वो वैसा होर्डिंग कैसा होता है, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हमें एक बंदा नहीं चाहिए बगल में खड़े होकर जो ये नहीं बताएगा कि ये इस चीज के लिए, हम ये पोस्टर इस चीज के लिए है, उसको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इस चीज को, इस पर्टिकुलर चीज को ये प्रमोट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके का होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, खुद को खुद से एक्सप्लेन कर सके, कोई दूसरा हमें पर्सन नहीं चाहिए हो जो उसे एक्सप्लेन करे। Okay, so next method of imparting education is the practical method। practical method मतलब प्रैक्टिकल मेथड्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम छोटा छोटा मेन्यू, शॉर्ट मेन्यू को प्लान कर सकते हैं, फूड की बजटिंग कर सकते हैं, कैलोरीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें लोगों को बता सकते हैं कि किस तरीके से वो मेन्यू को प्लान करें, कैलोरीज को कैलकुलेट करें, घर में जितना वो कर सकते हैं। तो इन मेथड्स को यूज करके भी हम एजुकेशन, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। साथ साथ में जब होम विजिट्स हो रहे हैं तो होम विजिट्स के टाइम में नर्स गाइड कर सकती है लोगों को, फैमिलीज को, कि किस क्या न्यूट्रिशन उन्हें लेना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द फैमिली साइज, डिपेंडिंग अपॉन द इनकम, डिपेंडिंग अपॉन द एज ग्रुप, कि अगर उस फैमिली में बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं,
बच्चे भी हैं. So depending upon that, okay, what should be the diet to be given to the old age people, then what should be the diet to be given to the infant or the child, then what should be the diet given to the adult. So accordingly she will be educating. Home visits के time पे वो educate कर सकती हैं. Okay, so these were the methods of imparting the nutritional education. क्या क्या थे methods? Personal talks, group discussion, exhibition and kitchen gardening, cooking demonstration, posters, charts, media, practical methods. ठीक है? So with this, there is a good news that with the completion of this particular thing, the nutrition syllabus gets over here. Okay, nutrition का जो syllabus है वो complete हो गया यहाँ पे. And now you can do one thing. First of all, whatever I have taught you in this week, you can keep writing the doubts whatever you have, which we will be discussing in the Saturday's doubt session. And also we will be, whatever doubts you have from the previous chapters, those also you can be you can put up some questions regarding those doubts as well, whatever belongs to the previous chapters. Okay. And also one more thing I would like to tell you here is, because obviously it is lockdown and I'm at my home, I do not have nutrition book with me. मेरे पास nutrition book नहीं है यहाँ पे. So आपको अगर कोई previous chapter के regarding कोई doubt होगा तो you can do one thing. आप book से picture click करके उस particular stanza के या उस particular page का picture send करके you can send on Saturday itself. Saturday की बात कर रही हूँ. Send करके आप तब मुझसे उस बारे में doubt पूछ सकते हो. ठीक है? And yeah, this much is enough, I guess. Do I need to tell something else? Yeah, one more thing very important. You need to be ready for the test which will be in the upcoming week. अभी इस week में कोई test मैं नहीं ले रही हूँ. इस week आप पढ़ाई कर लो. ठीक है, जो मैंने पढ़ाया. Next week से I'll be planning on some tests. I'll see how I can take it. The medium of taking test will be told to you. The marks of the test will be told to you. I'll be telling you each and everything. ठीक है? So फिलहाल तो अभी आपका जो syllabus है that is over here. Okay? So I hope your experience with me was good enough with the nutrition subject, and whatever I have taught you since the beginning of your session till now, I hope everything was clear to you. I was able to make you people understand whatever I wanted to, and whatever was helpful for you, whatever was essential for you to understand. So yeah, thank you class, thank you for cooperating with me during the lockdown as well. So yeah, thank you.